व्यूअर्स, आज हम +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो आखिरी टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, उसको डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू द सेट। सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी ऑपरेशन है जो किसी सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके अंडर दैट ऑपरेशन एक सिंगल एलिमेंट बनाता है। हम फर्स्ट या सेकंड क्लास से ही बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल आर बाइनरी ऑपरेशंस depending upon the set. For example, if we consider set of natural numbers, then subtraction cannot be a binary operation in natural numbers. Why? An operation is binary only if after the operation, let A, B are any two natural number. If we discuss difference, then A minus B must be an element of n. That is, A minus B always must be a natural number, which is not possible. For example, 8 is a natural number, 9 is a natural number, but 8 minus 9 is minus 1. And minus 1 is not a natural number. It means difference, subtraction cannot be a binary operation on n. But if we take Z, then it will be a binary operation. In mathematical terms, we say that the operation must be closed with that set. Then it will be binary. कि वो ऑपरेशन जो है उस सेट में क्लोज्ड होनी चाहिए। क्लोज्ड का मीनिंग ये है कि जो रिजल्टेंट एलिमेंट आए आपका वो सेट में होना चाहिए। इसी के ऊपर क्लियर करने के लिए कि whether a given operation binary operation is binary, whether given operation is binary or not. In exercise 1.4, first question is given. Question number 1. Let we consider the set of positive integers and operation is A binary operation B is equal to A minus B. This symbol will represent binary operation, and what is the binary operation? It will be given over here. इस क्वेश्चन में स्टार का मीनिंग हुआ सब्ट्रैक्शन, कि आपको घटाना है। तो आपको ये देखना है कि ये जो A स्टार B is equal to A minus B, whether this is a binary operation in positive integer set. Let us take A is 4, B is 5. Then 4 binary operation 5 means 4 minus 5 minus 1, which is not a positive integer. Minus 1 is a negative integer. तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट हमारा आया है वो इस सेट में ही नहीं है। That means this operation is not closed in this set. In other words, we will say that this is not a binary operation. A star B, that is A minus B, is not a binary operation on Z plus. Similarly, second part में इसने पूछा है कि if we consider the set of integers Z, then whether A star B is equal to A B will be a binary operation. If we take, if A B are any integers, then A B will always be an integer. कि दो इंटीजर को आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही आएगा, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि यदि हम सेट लें रियल नंबर्स का, और इफ A एंड B आर टू एनी टू रियल नंबर्स एंड A स्टार B इज इक्वल टू A B स्क्वायर, will this be a binary operation on real numbers? Clearly, if A, B are any two real numbers, then A, B square
will also be a real number. ए कोई भी दो रियल नंबर लेंगे और बी स्केयर करके ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर ही आएगा. इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड एंड सो दिस विल बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सिमिलरली z प्लस पे इसमें फोर्थ में दिया हुआ एक बाइनरी ऑपरेशन वही डिफरेंस की है कि इफ a and b are any two integers and binary operation is a minus b, a star b is equal to a minus b modulus. So if a b are any integers, positive integers, then a minus b will be equal to always z plus a minus b, whichever is greater than. Let us take a is 4, b is 5, 4 minus 5 means minus 1, but minus 1 modulus will be plus 1 and plus 1 is an element of this set z plus. तो मॉडुलस होने के कारण अब वो जो नेगेटिव इंटीजर्स आने की जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो जाती है. तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा ही इसी सेट से आएगा. सो दिस ऑपरेशन इज आल्सो एन बाइनरी ऑपरेशन. तो इसी प्रकार इसमें फिफ्थ में आप देख सकते हैं वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन जो है इस पे होगी. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का और जो मेन इसकी डेफिनेशन है कि वेदर ए गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी और नॉट, तो ये इसको क्लियर करने के लिए और सिंपली क्या मीनिंग है इसका कि वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो फाइनल एलिमेंट आए वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि दैट ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन होगा. इसके अलावा यदि एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑन दैट सेट, देन वी विल टॉक ऑफ वेदर गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, वेदर गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, वेदर देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट in the set corresponding to that binary operation, and fourth is there any inverse of each element, inverse of each element. तो जो क्वेश्चन आप पे आएगा इन चारों में क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्लोज्ड वाला पहले वाला, उसके अलावा ये चार प्रॉपर्टियां और इसमें हमें डिस्कस करनी है कि यदि हम ये सारा कर लेते हैं तो इससे बाहर इसमें कुछ आने वाला नहीं है. कॉम्यूटेटिविटी किसको बोलेंगे? सिंपली है कि कोई भी ऑपरेशन है, मान लिया कोई भी सेट है उसके दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट बी, और उसमें ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए और इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए बी ए, और यदि ये इक्वल आए, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, स्टार मीन्स corresponding binary operation. If these two are same, then that binary operation is called commutative operation. यदि और सिंपल भाषा में हम देखें कि नेचुरल नंबर में जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है. कैसे? हम 4 में 5 जोड़ें या 5 में 4 जोड़ें, दोनों ही अवस्थाओं में 9 आएगा. इसी प्रकार आप कोई और नेचुरल नंबर लेके तो इनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता कि फर्स्ट सेकंड में क्या है, वो इक्वल ही आ रहा है. लेकिन यही चीज यदि हम सब्ट्रैक्शन में देखें, सब्ट्रैक्शन घटाएं तो डिफरेंट आंसर आएंगे. 4 minus 5 will be -1 and 5 minus 4 will be +1. डिफरेंट आंसर आएंगे. तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो सब्ट्रैक्शन है नेचुरल नंबर में दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कि वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती. एसोसिएटिव में क्या है कि यदि 3 नंबर एसोसिएट करने हैं वो हमें, कि मान लिया कि 3 नंबर हैं, हम पहले नेचुरल नंबर में एडिशन को ही डिस्कस करते हैं कि 3 नंबर हैं 2 3 4, हमें इनको ऐड करना है. अब एडिशन तो क्योंकि बाइनरी है वो पहले 2 एलिमेंट को जोड़ेगी, वो आप चाहे इन 2 को जोड़ें चाहे इन 2 को जोड़ो, तीनों को तो जोड़ नहीं पाएंगे. यदि हम एग्जैक्ट करेंगे तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि पहले या तो हम इनको ऐड करेंगे 2 3 को, 5 + 4, अब ये 2 एलिमेंट हैं तो ये हो जाएगा 9. दूसरा क्या मेथड रहेगा कि हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले 2 बाद में ऐड कर लेते हैं, और 3 + 4 हो जाएगा
7, 2 + 7 अगेन 9। तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता कि हम पहले इन दोनों को में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं या इन दोनों में लगाएं, जो आंसर आता है वो सेम आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखेंगे आप वो नहीं होगा। तो इट मींस when we will discuss associativity of a given operation, then we will take 3 elements of that set and A star B star C must be equal to A star B star C। और करना होगा क्या कि मान लेते हैं पहले हम A और B में बाइनरी ऑपरेशन लगा देते हैं, then we add C or whatever बाइनरी ऑपरेशन is, and in second case B and C will be added further or will be formed one element under that operation, and then it will be formed one element with A. If these two are equal, then we will say that the given binary operation is associative. Identity means let E be any element in that set, उसी सेट में ये एलिमेंट होना चाहिए, such that A star E और E star A, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एक ऐसा एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए कि उस एलिमेंट का उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ यदि बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, वो चाहे आप एलिमेंट आगे रखें, आइडेंटिटी एलिमेंट पीछे रखें, आइडेंटिटी एलिमेंट आगे और एलिमेंट पीछे रखें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर विल बी सेम, दैट इज ए। ये तो मैथमेटिकली हमने वर्ड्स में लिखी है। वैसे सिंपली क्या है कि जैसे हम एडिशन देखते हैं, जोड़ नेचुरल नंबर में 2 में 0 ऐड करेंगे, क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, 0 + 2 करेंगे तो भी, यानी कि 0 एक ऐसा एलिमेंट हुआ, तो इसको नेचुरल नंबर में तो 0 होता नहीं, आप इसका इंटीजर्स का सेट ले सकते हैं Z। तो इंटीजर्स में 0 एक ऐसा एलिमेंट हुआ जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है कोरिस्पोंडिंग टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इट मींस 0 विल बी कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में सिंपली आप ये याद रख सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बाकी एलिमेंट्स पे जब उसके साथ उनकी बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। वो जो ऑपरेशन दी हुई है वो ऑपरेशन जब लगाते हैं इस एलिमेंट में और साथ में उसका कोई भी सेट का कोई भी एलिमेंट ले लें, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफ देयर एग्जिस्ट सच एन एलिमेंट देन इट विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट कोरिस्पोंडिंग टू दैट सेट। और फोर्थ है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। If A star B और B star A is equal to E, गिवन सेट में कोई एलिमेंट है उसका A, तो उसी में यदि ऐसा एक एलिमेंट भी है B कि A और B में ऑपरेशन लगा दी जाए और आंसर आ जाए, या B और A में ऑर्डर, यानी कि ये कॉम्पिटिटिविटी आप इसमें यूज करें कि बेशक आगे पीछे कोई सा भी हो, दोनों केसेस में होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए कि जो उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम B को क्या बोलेंगे? B will be called inverse of A। और थोड़ा डिटेल में इसको या सिंपली भाषा में समझें तो आप जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, अभी हमने किया था इंटीजर्स में, और जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन है वो हम लेते हैं एडिशन। सेट हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स और बाइनरी ऑपरेशन ली एडिशन। और अभी हमने किया था कि इसका जो E है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 0। 0 को जब भी किसी में ऐड किया जाता है कोई असर नहीं पड़ता उसका, तो जो 0 है वो E है। अब आप करें जैसे 2 है, 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो हमें पता है कि 2 में कितना ऐड करें, -2 ऐड करें तो अल्टीमेटली इट विल बी 0। -3 में कितना ऐड करें, 3 ऐड करें तो क्या होगा 0। तो आप और भी देख, इट मीन्स 2 and -2 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर
corresponding to binary operation एडिशन, इसीलिए इसको एडिटिव इनवर्स भी बोला जाता है। आपने कहीं पढ़ा होगा, इसे हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं कि जोड़ के हिसाब से उल्टा। तो सभी को पता है कि यदि हमें 5 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा कोई तो -5, -4 का पूछेगा तो 4 है, तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। लेकिन ये जो इनवर्स है, ऐसा नहीं है कि इनवर्स 2 का इनवर्स -2 ही होगा, ये डिपेंड करेगा बाइनरी ऑपरेशन पे। ये किसके लिए है? एडिशन के लिए। बाय चांस ये जो ऑपरेशन है यदि वो मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो क्या फिर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 से यदि हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं 0 की, और बाइनरी ऑपरेशन हमारी क्या हो? वो हो मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 0 तो 2 0 हो जाएगा। जबकि आना क्या चाहिए था? आना चाहिए 2, क्योंकि आइडेंटिटी की तो यही डेफिनेशन है कि उस बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, 2 का 2 रहना चाहिए, तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 बाइनरी ऑपरेशन नहीं है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो क्या होगी फिर? तो आप देखिए 2 × 1/2 1, 1/3 × 3 1, और 1 को मल्टीप्लाई करके देखिए 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4। यानी कि 1 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर में, ये तो आपका नेचुरल नंबर में भी चल जाएगा, नेचुरल नंबर का भी सेट लोगे आप। तो 1 कैसा एलिमेंट है कि मल्टीप्लिकेशन के कोरस्पॉन्डिंग 1 का कोई इफेक्ट ही नहीं आता किसी एलिमेंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट पूछे तो हम क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 इफ आवर बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीपल। और इनवर्स क्या होगा कि अब 2 का इनवर्स -2 नहीं होगा, क्योंकि 2 - 2 तो 0 होगा, जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है। तो अब क्या होगा? अब होगा 1/2, 2 कैंसिल्स विद 2 1, 1/3 × 3 = 1। यानी कि रेसिप्रोकल, जिसको प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में हम, 2, और इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाम है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन जनरली इसको हम इनवर्स से ही लिखा जाता है बुक्स में। यदि सिंपल इनवर्स लिखा हुआ है दैट मींस इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि आपका एडिटिव इनवर्स कहीं होगा तो वो साथ में लिखा होगा कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल इनवर्स लिखें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब है गुणा के हिसाब से इनवर्स। तो इनवर्स का अर्थ भी उल्टा ही होता है कि उसका उल्टा कर। तो बाइनरी ऑपरेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें यदि बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में या 4 नंबर में आता है तो ये चीजें उसमें हमें प्रूव करनी होती हैं कि प्रूव कीजिए जो गिवन ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है। उसके बाद ये भी आ सकता है कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए। ये भी आ सकता है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या होगा वो भी निकालिए। एक ध्यान देंगे, यदि आपको इनवर्स निकालना है तो ये आइडेंटिटी के बिना नहीं निकलेगा। बाई चांस किसी क्वेश्चन में ना ये है ना ये है ना इसी का वो पूछ लेता है फाइंड द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो यदि उसने इनवर्स पूछा तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी इनवर्स आएगा कहां से? क्योंकि इनवर्स की तो डेफिनेशन ही क्या है? इफ A and B are any two elements corresponding to that set, then A star B must be equal to A। तो यदि हमारे पास A ही नहीं होगा तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो ये भी होना जरूरी है। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट पहले कैलकुलेट किया जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट आने के बाद ही इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं, यदि उसमें एग्जिस्ट करता है तो पॉसिबल है। तो बाइनरी ऑपरेशन में ये चारों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम जो है वो ट्राई करते हैं। जैसे कि कुछ तो ऐसे ही इनसे पहली 2 प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें यदि हम बाइनरी ऑपरेशन ले लें A star B is equal to A minus B, is this operation commutative and associative? चेक करना। तो आप A B में भी चेक कर सकते हैं। कैसे? A star B will be A minus B and B star A will be B minus A and these two numbers need not to be equal। ये दोनों भी बराबर होने जरूरी नहीं है। जनरली A minus B will not equal to B minus A except कब?
इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी यदि इक्वल नहीं है तो ये दोनों चीजें कभी इक्वल नहीं आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जरूरी नहीं कि आप इसी तरह करें इसको, हम कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं कि लेट, ये दो एलिमेंट ही मान लेते हैं, लेट ए इज 4 बी इज 5, देन ए स्टार बी करेंगे पहले, ए स्टार बी, बी मीन्स ए आगे लेंगे बी पीछे, और ऑपरेशन क्या है, स्टार का मतलब है डिफरेंस, तो ए माइनस बी, और ए हमने लिया है 4, बी लिया है 5, आंसर आया -1। और कॉम्पिटिटिविटी में होता क्या है कि ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब हम निकालेंगे बी बाइनरी ऑपरेशन ए, तो बी अब आगे होगा, ए पीछे होगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। दीज टू आर डिफरेंट, दिस मीन्स दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिविटी, इसी की एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट जो है सेट के लेंगे, लेट ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स, सेट हमारा इंटीजर्स का है। तो ए बी सी से आप ऐसे करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, और पहले हम जो बाइनरी ऑपरेशन है वो पहले 2 एलिमेंट में लगाएंगे, तो ए स्टार बी क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी स्टार सी। अब ये क्या आएगा, अब इसको आप एक एलिमेंट माने कि एक एलिमेंट ये है, बीच में ऑपरेशन है, और इधर ये सेकंड एलिमेंट है, और ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है डिफरेंस, तो इसका मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब आइए ए स्टार बी स्टार सी, और क्या करना है, बी और सी में बाइनरी ऑपरेशन पहले लगानी है, देखते हैं कितना आता है। तो ए स्टार, अब बी स्टार सी क्या होगा, बी माइनस सी। अब इस स्टार की जगह भी माइनस कर दें, तो ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। अब इन दोनों को देखें, डिफरेंट नंबर आए हैं, तो ये माइनस बी माइनस सी है, ये माइनस बी प्लस सी है। दिस मीन्स दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, कि ये एसोसिएटिव भी नहीं। जरूरी नहीं आप एबीसी से करें, आप 3 नंबर भी ले सकते हैं कि लेट 2 3 4 आर 3 इंटीजर्स, और आप एक बार तो कैलकुलेट कर दें 2 3 4 इस प्रकार से, और दोबारा कर दें 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ये भी डिफरेंट आएंगे। कैसे डिफरेंट आएंगे, 2 स्टार 3 का मतलब हुआ 2 माइनस 3 स्टार 4, 2 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 स्टार 4, और स्टार का यहाँ जो डेफिनेशन है वो है माइनस, तो -1 -4 -5, और इधर पहले ही इसमें यहाँ जो 3 और 4 है उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, 3 - 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्टार -1। अब यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2 माइनस -1, 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3, तो ये भी डिफरेंट है। तो ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल भी ले सकते हैं, और अब एबीसी में भी इसको करके दिखा सकते हैं, जो आपको इजी लगता है वो कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, या जो फर्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है, वो ना तो कॉम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव। एक और चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए स्टार बी इज इक्वल टू, सेकेंड ही ले लेते हैं, ए बी प्लस 1, और जो हमारा सेट है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में ये ऑपरेशन है, यानी स्टार का मीनिंग है कि आपको इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें एक ऐड करना है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि दिस इज एन बाइनरी ऑपरेशन देन कैलकुलेट 4 3, कि इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत 4 3 कितना आएगा। तो क्या मीनिंग हुआ, ऑपरेशन इस स्टार का मतलब आपको यहां से समझना है कि क्या कहना चाहता है कि इधर ए है इधर बी है, और यहाँ कहता है कि ए बी, यानी कि ए बी को गुणा करते हैं उसमें एक जोड़ दें। तो इसके तहत यहाँ क्या आएगा, हमारा ए 4 है बी 3 है, 4 और 3 को गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे, और आंसर आ जाएगा 13। तो इस ऑपरेशन के तहत 4 3 का जो है वो 13 बन जाएगा।
तो खैर, तो हमारा जो सेट है वो तो सेट तो है रैशनल नंबर्स का, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है AB+1। तो आपको चेक करना है क्या ये कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिविटी कैसे चेक करेंगे, दो एलिमेंट ले लेते हैं रैशनल नंबर में से, और हम A*B लिखते हैं, कितना आएगा, तो कितना आएगा, वो AB+1 इसमें दिया हुआ है, और BA कितना आएगा, BA में ये BA+1 बनेगा। अब BA+1 तो अब AB+1 भी लिख सकते हैं हम, सेम ही है। तो इट मीन्स A*B comes out equal to B*A, and hence in this question this operation is commutative। क्या ये एसोसिएटिव भी है? एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट ले लें, A, B, C are any 3 इंटीजर्स, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये तीनों में लगानी है, A, B, C में, A, B, C में लगानी कैसी है, पहले A और B में लगानी है, और इधर B और C में लगानी है। तो पहले हम ये लगाते हैं, A और B में लगाओ बाइनरी ऑपरेशन, तो ये बन जाएगी कि इन दोनों की गुणा +1, और आगे तो है C। अब आगे क्या करेंगे, अब हमारा ये एक एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट ये होगा, ये होगा फर्स्ट एलिमेंट, ये होगा सेकंड एलिमेंट, और ऑपरेशन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें। तो आगे क्या होगा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कितना है AB+1, सेकंड एलिमेंट कितना है C, और फिर इसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। देखिए मल्टीप्लीकेशन के बाद ये आएगा ABC + C+1। इसमें कैसे आएगा ये, यदि हम B और B + C B C में पहले लगाएं तो A में बाद में A*, अब ये कितना बन जाएगा, ऑपरेशन तो वही है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें। अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है, और ऑपरेशन वही है जो अभी लगाई। क्या ऑपरेशन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर दें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर एक ऐड करें, देखो कितना आता है, ABC + A+1 डिफरेंट आए, इट मीन्स दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो आप यहाँ ABC की जगह एग्जाम्पल भी क्या हो स्पेसिफिक ले सकते थे कि 1, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, वो करके दिखा दें। तो ये सेकंड था। इसी प्रकार आपके इसमें 2 पार्ट और दिए हुए हैं, इसमें 2 के भी बल्कि 6 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। चलिए एक पार्ट और करते हैं हम। सेट है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स Z, और ऑपरेशन है A*B = 2⁴AB। इसका क्या असर है कि ये जिस 2 एलिमेंट में आपको लगानी है 2⁴ उनका प्रोडक्ट कर देना है। कि मान लिया 4, 5 में पूछे कि 5, 4 कितना आएगा, तो क्या होगा कि 2⁴20 हो जाएगा, ऊपर 5 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा। खैर, लेकिन हमें ये चेक करना है कि अगर दिस ऑपरेशन इज कॉम्पिटिटिव, तो आप 2 नंबर ले लें, लेट A, B are any 2 इंटीजर्स। तो एक बार तो A*B निकालें और दोबारा B*A निकालें, कितना आता है, तो A*B मीन्स 2⁴A, और B*A भी क्या आएगा, 2⁴BA। यहाँ A आगे है, B पीछे है, तो यहाँ A भी लिखा हमारा, B आगे है, A पीछे है, तो BA हो जाएगा। लेकिन इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, BA को तो A भी लिख सकते हैं, 2⁴A। तो दोनों इक्वल आई, इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज कॉम्पिटिटिव। इज दिस एसोसिएटिव? एसोसिएटिव यदि आपको चेक करना है तो फिर 3 नंबर लें, लेट A, B, C are any 3 इंटीजर्स, और क्या चेक करें, A*, B*, C, और दोबारा भी A*, B*, C चेक करें। फर्क सिर्फ ये रहेगा, यहाँ पहले A और B में लगाएंगे हम, यहाँ B और C। तो A और B में लगाने के बाद क्या बन जाएगा, 2⁴AB C।
ऑपरेशन स्टडी कर लेंगे शुरू में कि क्या कहती है कि 2 की पावर कर देनी है और दोनों एलिमेंट ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देने हैं। अब आगे ये क्या बनेगा बोलो, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है। तो क्या ऑपरेशन क्या कहती है कि 2 रेज़ टू पावर दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट लिख देना है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2ab इंटू सी बनेगा। इधर a स्टार b स्टार c कितना बनेगा, सबसे पहले हम a तो बाद में आएगा, तो b स्टार c का क्या बनेगा, 2 रेज़ टू पावर bc। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है और ऑपरेशन वही है जो हम लगा रहे थे। और ऑपरेशन क्या है कि 2 रेज़ टू पावर दोनों एलिमेंट को प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। तो एक एलिमेंट हमारा a और दूसरा एलिमेंट है 2 रेज़ टू पावर bc। और अब इनको देखेंगे तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर ab है, यानी कि डिफरेंट है, ये a है ये c, ये इक्वल नहीं आए हैं। इट मीन्स दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं। तो इसमें एक 2-3 पार्ट और है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो कहता है कि सेट है ए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है उसमें, और वो बाइनरी ऑपरेशन है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ए बाइनरी ऑपरेशन बी मिनिमम ऑफ ए बी। तो इसकी ऑपरेशन टेबल बना के दिखाइए। तो वो कैसे बनाएंगे आप, ये पांचों जो एलिमेंट है सेट के इधर ले लें, 1 2 3 4 5 और पांचों एलिमेंट इधर ले लें, इधर ये आपकी ऑपरेशन आ जाएगी 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट होगा 1 मिनिमम 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 मिनिमम है। फिर आगे 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1 1 3 में 1 1 4 में 1 1 5 में 1। अब आगे आ जाए 2 और 1 में कौन मिनिमम है, 1 2 और 2 में 2 2 और 3 में 2 2 और 4 में 2 2 और 5 में मिनिमम 2। आगे थर्ड 3 और 1 में 1 मिनिमम है, 3 और 2 में 2 मिनिमम है, 3 और 3 इक्वल है तो 3 हुआ मिनिमम, 3 और 4 में 3 और 5 में भी 3। 4 की बात करें, 4 1 में कौन मिनिमम है, 1 2 में 2 3 में 3 और 5 और 4 में 4। लास्ट 5 और 1 में 1 मिनिमम है, 5 और 2 में 2 मिनिमम है, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, 5 और 5 में 5 जो है वो मिनिमम है। तो ये ऑपरेशन टेबल है, बाइनरी ऑपरेशन है कि 2 एलिमेंट लेने हैं इस सेट के और उनमें मिनिमम करना है। इसको स्टार से भी शो किया जा सकता था, कहीं ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा है, तो ये स्टार बी भी लिख सकता है वो कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। पर ये जनरली ट्रेंड है इस तरह से लिखने का, तो ये है बाइनरी ऑपरेशन। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम, तो दोनों में से मिनिमम लेना है। तो हमने ये सारे इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, आप ऑर्डर्ड पेयर भी अलग से बना सकते थे 25, फिर उनमें मिनिमम लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो थर्ड था। इसी प्रकार की टेबल जो है क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो दी हुई है और उसमें से कुछ ऑपरेशन आपको देख के बतानी है, हो गया।